السلام علیکم. بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بصيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان قال ذلك شهر يغفل الله عنه بين رجب ورمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1444 اسلامی سال کا عظیم القدر عالی مرتبت بہت فضل و کمال کے مالک مہینہ شعبان المعظم ہے. تقریباً 29 کے چاند کے حساب سے منگل کا دن پورا ہو کر مغرب کی نماز کے شب برآت کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی منگل اور بدھ کی درمیانی رات یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات شمار کی گئی ہے. اسی رات کے فضائل قرآن اور احادیث سے اس رات میں ثابت شدہ اعمال اور اس رات کے منکرات 3 چیزیں مختصراً ذکر کرنی ہیں. اسلامی مہینوں میں محرم الحرام پہلا مہینہ ہے، ذوالحجۃ الحرام آخری مہینہ ہے، یہ چھٹا مہینہ ہے شعبان المعظم. شعبان المعظم کے فضائل پر سید الطائفہ حضرت غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنیت الطالبین میں بے شمار روایتیں نقل فرمائی، لیکن ہم پہلے قرآن کریم سے، پھر احادیث مرفوعہ صحیحہ سے، پھر سلف صالحین کے اقوال سے اس رات کی فضیلت کو سمجھیں گے. یہ 5 حرفی لفظ ہیں شعبان، شین، عین، با، الف اور نون. حضرت غوث العظم نے لکھا ہے کہ شعبان کا سین یہ شرافت پر دلیل ہے، اس کی ماں عین علو اور بلندی پر دلیل ہے، اس کی ماں برکت پر دلیل ہے، اور اس کا نون
नूरानियत पर दलील है। शीन का माना शराफत, बुजुर्गी, ऐन का माना उलू यानी बुलंदी, बा का माना बरकत, अलिफ का माना उल्फत यानी मोहब्बत और नून का माना नूर। क्या मतलब? शाबान से पहले इंसान अपनी 24 घंटे की जिंदगी में आमाल, इबादत, तवज्जु इल्लाह से आम तौर पर गाफिल होता है। जब शाबान का महीना आ जाता है तो खैर का सीजन शुरू हो जाता है और सीजन में काम आसान हो जाता है। नेकियों के कमाने का सीजन शुरू हो गया, अल्लाह की रहमत का सीजन शुरू हो गया, अल्लाह की मगफिरत का सीजन शुरू हो गया शाबान से। एक बेकदरा इंसान गुनाह और मासियत के दलदल में फंसा हुआ, माहौल में आकर के गलत जिंदगी से तौबा करके जो अल्लाह की निगाह में मरदूद हो चुका था, महरूम हो चुका था, उसकी वैल्यू खत्म हो गई थी, अब तौबा करके अल्लाह की रहमत में दाखिल हो करके अब वो शराफत और बुजुर्गी और करामत के काबिल बन गया। फिर जब आदमी शरीफ बन जाता है तो आली मर्तबत बन जाता है, उसका मर्तबा ऊंचा हो जाता है। और जब बुलंद की दाम का हामिल इंसान होता है तो उसकी जिंदगी अनवार और बरकत का मजमुआ होती है, और जिसकी जिंदगी अनवार और बरकत का मजमुआ हो उसकी जात उल्फत और मोहब्बत बन जाती है। और जब उल्फत और मोहब्बत जब इंसान की जिंदगी का शेवा बन जाता है तो उससे नूर निकलता है और वो नूर पूरे आलम में चमकता है। इस हिसाब से शाबान के 5 हर्फ का तर्जमा हो गया शराफत, बुलंदी, बरकत, उल्फत और नूरानियत। इस रात की फजीलत में हामीम वल किताबिल मुबीन हुरूफ मुक़त्ताअत में से है हामीम, अल्लाह ही इसकी मुराद को बेहतर जानते हैं। वल किताबिल मुबीन वाज़ेह, खुली हुई किताब यानी कुरान करीम की कसम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान को एक बरकत वाली रात में लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर यकबारगी उतारने का फैसला कर दिया। ये तर्जुमा मैंने सारे इख्तिलाफात और सारे मसलकी तनाज़ुआत को खत्म कर दिया है, वरना उसका तर्जुमा ये होता है हमने लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर यकबारगी लैलतुल क़द्र में कुरान नाजिल कर दिया। और तर्जुमा मैंने ये किया लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर यकबारगी कुरान उतारने का फैसला कर दिया। गोया के शाबान की 15वीं रात में लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर कुरान के उतारने का फैसला हुआ। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, एक चीज तो ये हो गई कि कुरान उतारने का फैसला शाबान की 15वीं रात में हुआ। इस रात में क्या होता है? फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, हर हिकमत वाले मामले का फैसला होता है। रहमतम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन, अल्लाह की तरफ से रहमत के तौर पर, और अल्लाह ही फैसलों को लेकर के फरिश्तों के नाम नामजद करते हैं और उनकी जिम्मेदारियां देते हैं। क्या मतलब? शाबान की 15वीं रात की अगर सबसे बड़ी फजीलत बयान की जाए तो इस रात में कुरान के उतारने का फैसला हुआ। फिर रमजानुल मुबारक में लैलतुल क़द्र है, उस लैलतुल क़द्र में आसमानी दुनिया से लोगे महफूज से आसमानी दुनिया पर पूरा कुरान उतर गया। फैसले के 14 दिन बाद अमलवारी हुई। फैसला पहले होता है, अमल बाद में वजूद में आता है। तो लौहे महफूज से
आसमानी दुनिया पर कुरान के उतारने का फैसला शाबान की 15वीं रात में हुआ। आमीन। वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, इस बाबरकत रात से शाबान की 15वीं रात मुराद है। जबकि मुफस्सिरीन की एक जमात इसको लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर यकबारगी कुरान उतरा वो लैलतुल कद्र थी और उसका ताल्लुक रमजान मुबारक से है। लेकिन हम ये तफसीर करते हैं कि लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर यकबारगी कुरान के उतारने का फैसला शाबान की 15वीं रात में हुआ और अमलवारी रमजानुल मुबारक में लैलतुल कद्र में हुई। फिर आसमानी दुनिया से जमीन पर 13 बरस मक्की दौर में, 10 बरस मदनी दौर में, 23 साल पूरा का पूरा कुरान उतरता रहा। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, जो ये आयत करीमा सूरह कद्र की इस पर दलील है। गोया के शाबान की 15वीं रात अफजल है, बुजुर्ग बाला बरतर है, इसलिए कि इसमें कुरान के उतारने का फैसला हुआ। गोया के शाबान की 15वीं रात से तिलावत का आगाज हो जाना चाहिए और रमजान के इस्तकबाल में पहली रमजान की रात से पहले पहले पूरा एक कुरान रमजान के इस्तकबाल में पेश करना चाहिए। और बहुत आसान है, रोजाना 2 पारे पढ़ ले, 15वीं शाबान को 3 पारे पढ़ ले, बाकी रोजाना 2 पारे पढ़ ले, तो इंशाअल्लाहुल अजीज रमजान की आमद पर पूरा एक कुरान इस्तिक़बाल रमजान में पेश हो जाएगा। और ये बहुत आसान है। और शाबान की 15वीं रात से तो कुरान करीम की तिलावत का आगाज कर देना चाहिए। जब रब ताला ने इस रात में कुरान के उतारने का फैसला कर दिया तो फिर बंदी को भी चाहिए कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर उसकी तिलावत का आगाज कर दे। एक काम तो ये हो, यानी शाबान की 15वीं रात को 3 पारे और ईद रमजान के चांद तक, सुबूते रमजान तक पूरा एक कुरान पेश हो जाए। रिवायत में है दुनिया में इंसानों के लिए 2 ईद के दिन, एक रमजान ईद और एक बकरा ईद। पूरी कायनात में इंसानों के ईद के दिन 2 है और वो दोनों दिन है। अलबत्ता आसमानों पर फरिश्तों की भी 2 ईदें हैं और वो दोनों ईदें रात में है। इंसानों की दोनों ईदें दिन में है, एक रमजान ईद और एक बकरा ईद। फरिश्तों की आसमानों में भी 2 ईदें हैं, लेकिन उनकी दिन में ईद नहीं है, उनकी रातों में ईद है। और वो कौन सी 2 रातें हैं जो फरिश्तों के यहां ईद की रातें हैं? एक शाबान की 15वीं रात और एक लैलतुल कद्र जो रमजान में है। इस रिवायत से बात मालूम क्या हुई कि इंसानों की ईद दिन में है और फरिश्तों की ईद रात में है और अजीब माहौल फरिश्तों का हो जाता है। एक रिवायत में है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील तशरीफ लाए और कहा, नबी जी आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखो, 8 दरवाजे जन्नत के खोल दिए गए। नबी अपने दौलत कदे से 8 आसमान के दरवाजे, जन्नत के 8 दरवाजे आसमानों पर खुले हुए नजर आ रहे हैं। का पहला दरवाजा रुकू करने वालों के लिए, दूसरा दरवाजा सज्जा करने वालों के लिए, तीसरा दरवाजा जिक्र करने वालों के लिए, चौथा दरवाजा दुआ करने वालों के लिए, 5वां दरवाजा अल्लाह के सामने आवाज़ारी करने वालों के लिए, 6ठा दरवाजा इंसानों को खुशखबरी देने के लिए और 7वां दरवाजा रब ताला की रजामंदी के लिए और 8वां दरवाजा अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत के ऐलान के लिए। बहुत बड़ी रात है। एक मर्तबा शाबान का महीना आया, 13 तारीख थी। आका ने
رات میں عبادت کی اور اپنی امت کے لیے سفارش کی. 13ویں شعبان کی رات تھی. آقا عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنی امت کی سفارش فرمائی. اللہ نے 1/3 امت کی سفارش آقا کو لکھ دی. فیصلہ ہو گیا. 1/3 امت 1/3 امت کی سفارش آپ کی قبول. جب شعبان کی 14ویں رات ہوئی، دوسری رات، آقا نے پھر امت کی سفارش کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست پیش کی. 2/3 امت کی سفارش منظور ہو گئی. پھر شعبان کی 15ویں رات، تیسری رات تھی، تو آقا نے پھر سفارش کی درخواست کی. شعبان کی 15ویں رات کو آقا سے فرمایا گئے آپ کی پوری امت کے حق میں آپ کی سفارش منظور کر دی گئی. 13 تاریخ بھی مبارک ہے. 13ویں، 14ویں، 15ویں، 3 تاریخوں میں مسلسل یعنی تینوں راتوں میں نبی جی نے امت کی سفارش کے لیے دعائیں کی. پہلے میں 1/3، پھر 2/3 اور اس کے بعد پوری امت کی سفارش کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی. آج کی رات کے مسنون اعمال، کوئی خاص عمل اس رات کا مخصوص نہیں، البتہ ذکر کریں، تلاوت کریں، دعا کریں، تسبیحات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، نماز کی کثرت کریں. ایک نماز صلاۃ التسبیح کے نام سے مشہور ہے. شعبان کی 15ویں رات کو پڑھ ہی لینی چاہیے. آقا نے اپنے چچا عباس کو ہفتے میں 1 مرتبہ، نہیں تو 15 دن میں 1 مرتبہ، نہیں تو مہینے میں 1 مرتبہ ضرور یہ نماز پڑھ لینی چاہیے. ہمارے اکابر اور سلف صالحین کا یہ معمول ہے کہ ہر جمعہ کے دن مسجدوں میں ہی صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہوتا ہے، اور جہاں جہاں آج یہ حضرات موجود ہیں وہاں پوری کی پوری صفیں صلاۃ التسبیح کے اندر مشغول ہوتی ہے. ہمارے یہاں اس کا رواج بالکل نکل چکا. پہلے لوگ شعبان کی 15ویں رات میں مسجدوں میں، عورتیں گھروں میں صلاۃ التسبیح پڑھا کرتی تھی. آج پورا طریقہ بدل گیا. پھر سے اس کو عمل میں لے آؤ. مرد حضرات صلاۃ التسبیح عشاء کے بعد مسجد میں پڑھ کر ہی گھر جائیں، یا مغرب کے بعد سے عشاء کے درمیان صلاۃ التسبیح پڑھ لیں. 10-12 منٹ کی نماز ہے، کوئی لمبی نماز نہیں. اگر کسی کو عادت بن گئی ہمیشہ کے لیے تو 7-8 منٹ کا مسئلہ ہے. جب نبی نے اپنے چچا کو اس قدر اہمیت بتائی ہو تو یہ نماز کتنی محترم بشان ہوگی. تو صلاۃ التسبیح پڑھے. نارمل طریقہ اس کا ہر ایک کو معلوم ہے. پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر 4-5 مرتبہ پڑھنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ 1 مرتبہ، یا ہر تسبیح میں لا حول ولا قوت الا باللہ 1 مرتبہ پڑھ لیں. 15 مرتبہ. پھر سورہ فاتحہ اور قرات رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لے. پہلی رکعت میں 25 مرتبہ، رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے بیٹھ کر 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرا سجدہ کر کے کھڑے ہو جائیں. یہ ایک ترتیب ہے. دوسری ترتیب، پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور دوسری رکعت میں فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر کے سیدھا رکوع میں چلا جانا ہے. باقی تمام ترتیب یہ، اور بیٹھ کر دوسرے سجدے کے بعد 10 مرتبہ. تو چاہے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھ لو، یا پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ اور آیتیں 3 یا رکوع پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، تو 25 ادھر کر لو یا 15 ادھر کر کے 10 ادھر کر لو. 75 مرتبہ ایک رکعت میں تسبیح ہونی چاہیے. بہت آسان ہے.
कोई मुश्किल नहीं। सलातो तस्बीह इस रात का खास वजीफा बनाना चाहिए। तहज्जुद 12 रकात इस रात में खास तौर पर पढ़नी चाहिए। तहज्जुद का वक्त नींद से उठने के बाद है। आदमी सो जाए इब्तिदाए शब में, वस्ते शब में और सेपहर में उठ जाए, लेकिन अगर किसी को उठने का एतबार नहीं है, 11 बजे सो गया, 12 बजे सो गया, सोने से पहले पढ़ ले, तब भी उसकी तहज्जुद हो जाएगी। यहां तक उलमा ने लिखा है अगर रात को मशगूली की वजह से तहज्जुद नहीं पढ़ सकेगा तो वित्र के बाद 4 रकात तहज्जुद की नीयत से पढ़ ले तो भी सवाब मिलेगा। किस कदर सस्ता सौदा है। सलातो तस्बीह पढ़ ली जाए, तहज्जुद की नमाज पढ़ ली जाए, इन सब से पहले 2 रकात सलातुल तौबा, 2 रकात सलातुल हाजा। हजरत गौसुल आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब ने 1000 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत 2-2 रकात पढ़कर हर रकात में 10 मरतबा की तरतीब के साथ पढ़ने का वजीफा भी बताया है। ये हदीस से साबित नहीं है, अलबत्ता बड़े इंसान की बात है। 100 रकात नफल पढ़ेंगे, हर रकात में 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद सूरे फातिहा के बाद पढ़ेंगे, 1000 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद हो जाएगा। ये तो सब अमाल हैं। इस रात में खास तौर पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी आपकी नमाज सजदे साबित है और लंबी देर तक दुआए मगफिरत उम्मत के लिए साबित है। लिहाजा इस रात में सजदा लंबा होना चाहिए, यानी देर तक आदमी सजदे में अल्लाह ताला से दुआएं करता रहे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है शाबान के महीने के दिन के आमाल क्या थे। हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना शाबान के महीने में रोजा रखते देखा और किसी महीने में नहीं देखा। मा रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरैन मुतताबिअैन इल्ला शाबान व रमज़ान। पूरा शाबान के 30 रोजे और पूरे रमजान के रोजे। उम्मुल मोमिनीन है, हम मुसलमानों की मां हैं, अल्लाह के नबी की चहीती बीवी है। वो यूं फरमाती है 2 महीने लगातार रोजे रखते थे, पूरे शाबान के और पूरे रमजान के। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है हजरत उसामा इब्न ज़ैद ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा लम अराक तसूमु फी शहरिन मिन अश-शुहूर मा तसूमु फी शाबान क़ाल ज़ालिका शहरुन यग़फुलु अन्नास अन्हु बैन रजब व रमज़ान। सहाबा अजीब किस्मत के लोग थे। वो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने आका का अमल बताया और इस अमल पर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आका के घर के आदमी थे, वो अज़वाजे मुताहरात और ज़ैद इब्न हारिसा के बेटे उसामा इब्न ज़ैद इब्न हारिसा, वो भी घर के आदमी, आका से पूछ लिया नबी जी क्या वजह है, साल भर में रमजान के रोजे तो फर्ज हैं लेकिन आप शाबान के इतने रोजे क्यों रखते हैं, इसकी वजह क्या। लम अराक तसूमु फी शहरिन मिन अश-शुहूर, किसी महीने में इतना रोजा रखते हुए मैंने आपको नहीं देखा जितना कि आपको शाबान के रोजे रखते देखा। तो आका ने बहुत पति की बात बताई ज़ालिका शहरुन यग़फुलु अन्नास अन्हु बैन रजब व रमज़ान। लोग रमजान में तो एहतिमाम करते हैं लेकिन रजब में भी एहतिमाम कर लेते हैं, लेकिन शाबान में रमजान की तैयारी में आदमी गफलत बरतता है। तो फरमाते हैं मैं इस वजह से एहतिमाम करता हूं कि कहीं रमजान में गफलत न हो जाए।
हालांकि गफलत का आका पर तसव्वुर भी नहीं था। इस कदर एहतिमाम रमजान के से पहले शाबानुल मुअज्जम का था। ये तो उसके दीनों की फजीलत हो गई। गोया के शाबान के महीने में आदमी को इत्तिबाए सुन्नत की निस्बत से रोजा रखना चाहिए, 100 शहीद का सवाब मिलेगा। पूरा शाबान नहीं रख सकते, 12, 13, 14 3 रोजे रख ले। अय्याम बीज के हर महीने की चांद के रोजे, उजाले के रोजे, और वो 12, 13, 14 है या 13, 14, 15 है, ये शाबान के 3 रोजे रख ले। एक रोजा 10 का सवाब रखता है, 2 रोजे 20 का सवाब रखते हैं, 3 रोजे 30 का सवाब रखते हैं। अगर अय्याम बीज के 3 रोजे किसी ने रख लिए तो उसको शाबान के 30 रोजों का सवाब मिलेगा। पूरे शाबान के 30 रोजों का सवाब मिलेगा। और बहुत आसान है। रोजे के बेशुमार फवाइद हैं जो हम रमजान में सुनते हैं। इस रात में अल्लाह आसमानी दुनिया पर उतर जाते हैं, 3 ऐलान करते हैं, अला हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिरु लहू, है कोई माफी चाहने वाला मैं उसको माफ कर दूं। अला हल मिन मुस्तरज़िकिन फअरज़ुकुहु, है कोई रोजी का मांगने वाला कि मैं रोजी अता करूं। अला हल मिन मुब्तलन फआफी, है कोई मुसीबत का मारा परेशान, मुख्तलिफ परेशानियों में इंसान की जिंदगी गुजरती है कोई मुसीबतों में मुब्तला परेशान कि मैं वो मुझसे मुसीबतों के दूर करने की दरखास्त करे और मैं उससे आफत बला मुसीबत को खत्म कर दूं। यह ऐलान कब तक होता है? सुबह सादिक तक यह ऐलान होता है और अल्लाह फरिश्तों की एक जमात को जमीन पर भेज देते हैं। वो इंसानों की दुआओं पर आमीन कहते हैं और इबादतों पर इस्तिकामत करवाते हैं। बहुत बड़ी रात है। इस रात को असर के बाद मगरिब से पहले गुस्ल कर लेना चाहिए, दिन में हजामत बना लेनी चाहिए। ये रात आसमानों पर फरिश्तों की ईद की रात है। जब आसमानों पर फरिश्तों की ईद की रात है तो फरिश्तों को खुशबू से मोहब्बत है। इंसान मेला कुचला न रहे। वो जब हमारे पास आए हैं और हमारी मजलिसों में शामिल हुए हैं, ताज़ी उस दिन हजामत बना ले, यानी मंगल के दिन हजामत हो जाए, उम्दा कपड़े पहन ले, गुस्ल कर ले, मिसवाक कर ले, इतना इस्तेमाल कर ले, जितना हो सके इबादत का एहतिमाम करे। आखिरी दर्जे में मगरिब की नमाज बाजमात अदा कर ले और फजर की नमाज बाजमात अदा कर ले। मगरिब की नमाज बाजमात अदा हो गई, आधी रात की इबादत का सवाब, और फजर की नमाज बाजमात हो गई, बाकी आधी रात की इबादत का सवाब। ये तो आखिरी दर्जा है। जब आका लंबा सजदा फरमाए थे और रात में उठकर अपनी उम्मत के मरहूमीन की मगफिरत के लिए बकी तशरीफ ले गए थे। यह आका का अमल था। लंबी देर तक नमाज पढ़ी, जिंदा इंसानों की सिफारिश मांगी और मरहूमीन के हक में दुआए मगफिरत के लिए उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की बारी थी और आका रात को उठ करके तशरीफ ले गए थे और बकी वालों के लिए देर तक दुआए मगफिरत करते थे। इससे साबित हुआ कि रमजान शाबानुल मुअज्जम की रात कब्रिस्तान भी जाया जाए, लेकिन जिंदगी में एक मर्तबा आका से साबित है, हर बार साबित नहीं है। लेकिन आदमी जावे तो उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन जाना आका की तरतीब से होना चाहिए, दोस्तों के हुजूम के साथ नहीं, बच्चों के खेल के सामान के साथ नहीं। सामने कब्र हो, आखिरत का मंजर हो, सोए हुए की हालत पर निगाह हो। एक दिन आएगा जब छोड़ छाड़ करके मुझे भी लोग गोरे गोरिस्तान के हवाले कर देंगे। मेरा भी वही होना है जो सांगी बेकब्र का हुआ है। यहाँ हसब नसब काम नहीं देता है, यहाँ इंसान को कोई चीज नफा नहीं देती, उसके नेक अमाल
अल्लाह से ताल्लुक और नेक औलाद उनके लिए वसीला और इसाले सबब, आखिरत के इस्तेहजार के साथ, बरज़ख की यादों के साथ और कब्र के अहवाल के मुज़ाकरों के साथ अगर कब्रिस्तान जाया जाए तो ये बहुत बड़ी इबादत है, सवाब की चीज है। ये तो आमाल बसरून, इस रात में अल्लाह की मग़फ़िरत आम हो जाती है। आका ने खुद लंबा सजदा, दुआए मग़फ़िरत, उम्मत की सिफारिश मांगी थी, लिहाजा हमें भी आका की निस्बत से इत्तिबाए सुन्नत की गर्ज से यह आमाल साबित है। और 3 रोजे रख ले तो बेहतर है, 13, 14, 15, 12, 13, 14, इस नीयत से कि एक रोजा 10 के बराबर है, 3 रोजे 30 के बराबर है। लोग 2 तो रखते हैं, 3 रख ले तो पूरे महीने के रोजे का सवाब। लेकिन ये सुन्नत है, ये वाजिब नहीं है, ये सुन्नत के दर्जे की चीज है। अय्याम 20 के रोजे, इस रात में अल्लाह की मग़फ़िरत आम हो जाती है। हाँ, लेकिन 6 बदकिस्मत इंसान हैं जिनकी इस रात में इन गुनाहों से तौबा के बगैर मग़फ़िरत नहीं होती। 6 बदकिस्मत महरूमुल किस्मत इंसान हैं जिनकी इस रात में तौबा के बगैर मग़फ़िरत नहीं होती। वो कौन है? एक मुशरिक, उसकी मग़फ़िरत शिर्क के साथ नहीं होती। मुशरिक किसे कहते हैं? अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की सिफत, इनमें से किसी एक में अल्लाह का किसी को पार्टनर बनाए, वो मुशरिक। साझा बनाने वाला, तर्जमा नहीं समझे आप, इसलिए मैंने पार्टनर। अल्लाह जैसे मुस्तहिक के इबादत है, किसी गैर को सजदा करे, किसी गैर को अल्लाह माने, अल्लाह की ज़ात में किसी को पार्टनर समझे, अल्लाह की सिफात में पार्टनर समझे, अल्लाह शाफी, अल्लाह हादी, अल्लाह अलीम, अल्लाह समीआ, अल्लाह बसीर, जो अल्लाह की सिफात है, इन सिफात में खुदा के साथ किसी को पार्टनर करार दे दे, अल्लाह की इबादत में किसी को पार्टनर करार दे दे, ऐसे मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं होती। इन अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं करते, मुशरिक की। दूसरे नंबर में माँ बाप का नाफरमान, उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। माँ बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। ये दोनों तेरी जन्नत है या ये दोनों तेरी जहन्नम है। अगर ये दोनों खुश हैं तो जन्नती है, ये दोनों नाराज है तो जहन्नमी है। अल्लाह मुरब्बी हकीकी है, पूरी कायनात को अदम से वजूद अल्लाह ने बख्शा, और अल्लाह के बाद, पैगंबर के बाद पूरी कायनात में एहसान सबसे ज्यादा माँ बाप का है। लिहाजा माँ बाप को खुश कर दो। अगर किसी वजह से माँ बाप नाराज हैं तो राजी करने की कोशिश करें, इनका दिल जीत लें। आज की रात बहुत बड़ी रात है। हमारे यहां पहले एहतिमाम होता था कि सारे झगड़ों के समाधान 14 शाबान से हो जाते थे। अभी शादियों में बदल गए हैं। शादी में हर एक को खुश करने की कोशिश, जिनसे दुश्मनियां हुई महीनों समाधान चलते हैं। कोई खुशकिस्मत ऐसा भी है जो शाबान की 14वीं रात को, एक रात से पहले अपने माँ बाप नाराज हैं उनको राजी कर ले, बहन नाराज है उनको राजी कर ले, भाई नाराज है उनको राजी कर ले। हमारे यहां पहले तरतीबें होती थी। जो पुराने लोग आज से 50 बरस पहले ऐसे बूढ़े लोग थे जो शाबान में पहुंच जाते थे, बहुत बड़ी रात आ रही है, शब बारात। उस वक्त तो शब बारात बोलते भी नहीं थे, सुबरात कहते थे। लेकिन लोग अच्छे थे, सुबरात बोलते थे, शब बारात नहीं बोलते थे। लेकिन सुबरात बोलने वाले शब बारात वालों के मुकाबले में बहुत बेहतर थे, सुलह करा देते थे। वो माँ बाप को भी समझा देते थे, औलाद को भी समझा देते थे, सुलह कर ले।
अल्लाह को बंदे की सुलह बहुत पसंद है। और माँ बाप वो कीमती खजाना है और वो अजीमुल मर्तबत दौलत है कि खाली औलाद उसके कदमों में गिर जाए। और माँ और बाप औलाद को नवाजने के लिए तैयार रहते हैं, बल्कि इंतजार भी होता है कि शाबान में आएगा ही, और आज कोई लेना देना नहीं शाबान से। लिहाजा माँ बाप को राजी करने की कोशिश करें। अगर माँ बाप राजी है तो रब ताला भी राजी है, और अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। तीसरे नंबर में नाता तोड़ने वाला। माँ बाप नाराज हैं, वो तड़प रहे हैं, कितने ही तहज्जुदें पढ़ ले, मगरिब से लेकर के फजर की अज़ान तक सजदा करे, गैर शरई वजूहात, अगर शरई वजूहात की बुनियाद पर नाराज है तो नहीं, गैर शरई वजूहात की बुनियाद पर नाराज है, पूरी रात पैसानी रगड़ ले, उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। वहां अल्लाह ताला ने माफी रखी, इनको खुश कर दे। अगर कोई हक है ले दे करके राजी कर ले। माँ बाप की रजामंदी बहुत जरूरी है। नाता तोड़ने वाला, इसकी मग़फ़िरत नहीं होती। जो आदमी नाता तोड़ता है उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। लिहाजा जिनसे ताल्लुकात खराब है उनसे ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश करे। चौथे नंबर में शराबी, उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। शराबी की, शराब उम्मुल खबाइस है। आका ने एक जुमले में उसकी पूरी हकीकत बयान कर दी। लोगों ने जिस्मानी नुकसान, अक्ली नुकसान, तिब्बी नुकसान, उखरवी नुकसान किताबें लिख डाली, लेकिन आका ने एक जुमला उम्मुल खबाइस, जितनी खबीस चीजें दुनिया में है उसकी जड़ शराब है। अब इसके कायम मुकाम ड्रग्स हो गया। उम्मत का बहुत बड़ा तबका आज ड्रग्स के अंदर चला गया। बहुत बड़ा तबका जवानों का अजीब खेल की जिंदगी गुजार रहा है। कोई बात भी कान के अंदर क्या ऊपर से ही पास हो जाती, कितना ही समझाओ। आज के जवानों की जिंदगी मोबाइल है, ड्रग्स है, पान मावे है, खुराफात है। आमद के मुकाबले में अखराजात बहुत है, आवक के मुकाबले में जावक बहुत। शराब इतनी खबीस चीज है, इंसान की जिंदगी को खत्म करती है, उसकी रोजी की बरकत को खत्म करती है, उसके चेहरे की नूरानियत को खत्म करती है। जहां शराब आई, कोई भी नशा आया, उसकी औलाद भूख मरती है और उसकी औलाद भिखारी बनती है। इसलिए कि पूरा सरमाया शराब पर लुटा देता है, पूरी जायदादें खत्म कर देता है। देखो शराबियों के हालात, तुम्हारे सामने कई शराबी ऐसे दर्जनों होंगे जिनकी पूरी लाइफ तो गई, औलाद को भी भिखारी बनकर के छोड़ गया। वो दौलतमंद मालदार था, लेकिन शराब की आदत पड़ चुकी, लत पड़ चुकी, जायदाद बेचता गया और आने वाली औलाद आज लोगों के सामने हाथ फैलाती है, भीख मांगती, हालांकि पेटीदार था। उससे खतरनाक ड्रग्स है। बहुत बड़ा तबका ड्रग्स में मुब्तला है। पान माओं में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, बीड़ी सिगारेट में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, खाने पीने की चीजों में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। जवान की आदत बन गई, 1 बजे के बाद नींद आती है और सुबह 11 बजे आंख खुलती है। शैतान के कान में पेशाब करने की हालत में रोज सुबह गुजरती है। नहुसत की हालत में जिंदगी गुजर रही है। शराब, चाहे देसी दारू हो भट्टे का, या इंग्लिश दारू हो, या ड्रग्स हो, नाम बदलने से हराम हलाल नहीं होता है। हर नशा आवर चीज हराम, हर नशा आवर चीज इंसान की जिंदगी तबाह करेगी, अक्ल खत्म हो जाएगी, चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा और मौत के बाद उसकी जिंदगी की बुराइयां खुलेगी। और ऐसी खुलेगी, नबी फरमाते हैं कसम खुदा ताला की, ऐसी बुराइयां खुलेगी, ऐसी बुराइयां खुलेगी कि लोग कब्रों पर निशाना ताकेंगे कि ये वो था
जैसे नेक लोगों की इंतकाल के बाद छुप कर की जाने वाली नेकी खुदा खोलता है, इस तरह शराबी की जिंदगी के बाद जब बरज़ख का सफर कर लेगा, अकल तो खत्म हो गई, बाल तो तबाह हो गए, चेहरे का नूर तो ज़ाहिर हो चुका, औलाद भिखारी बन चुकी, और मरने के बाद उसकी बुराइयां खुदा खोलता है। नेकियों से याद नहीं किया जाता, बुराइयों से याद किया जाता है। यह एक निजाम है कुदरत का। इंसान जितना ही चाहे किसी के साथ मकर कर ले, लेकिन कुदरत उस दिन में कि जिस दिन उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूटेंगे, खुफिया नेकी मौत के बाद खुलती है, और खुफिया बुराइयां मौत के बाद खुदा जिल्लती के नक्शे करता है। कितना ही छुप कर प्लान बनाओ, वयम करून वयम करुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वो अल्लाह है, वो जमा रखता है यहां का यहां भी और यहां का वहां भी, उसकी मगफिरत नहीं होती। ठीक इसी तरह शराबी के बाद जीना कर, जो जीना खोर है, उसकी भी मगफिरत नहीं होती। फरमाते हैं 1000 बदकार मर्द इतना नुकसान उम्मत को नहीं पहुंचा सकते जितनी एक फाहिशा बदकार जानिया औरत नुकसान कर देती है। 1000 बदकार मर्द दुनिया में इतना फसाद बर्पा नहीं कर सकते जितनी एक जानिया फाहिशा औरत, 1000 बदकार मर्द जितना बिगाड़ पैदा करते हैं, उससे खतरनाक बिगाड़ एक जानिया औरत माशरे में बिगाड़ पैदा करती है। जिना के भी 3 दुनियावी नुकसान है, 3 उखरवी नुकसान है। जानी उसकी उम्र खत्म हो जाती है, जानी उसकी रोजी खत्म हो जाती है, और जानी का नूर खुदा खत्म कर देता है। ये 3 दुनियावी नुकसान है। सलफ सालिहीन से मनकुल रोजी में बरकत नहीं रहेगी। कितना ही कमाता है लेकिन दिखता नहीं। जिना के मुख्तलिफ तुरुक है, जिंदगी खत्म, यानी उम्र में बरकत नहीं रहती। अल्लाह नूर भी चेहरे का खत्म कर देते हैं। उखरवी नुकसान, मरते ही आदाब कब्र में मुब्तला होता है। उसके बाद दूसरा नुकसान, पूछताछ में बहुत सख्ती होती है। बरज़ख में पूछताछ में बहुत सख्ती होती है। और तीसरा नुकसान, मरते ही जहन्नम में धकेल दिया जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये बड़ी रातें हैं। आखिरी चीज, मां बाप का नाफरमान, शराबखोर, ज़िनाकार, और आखिरी दर्जे में चुगलखोर, जो लोगों की चुगलियां खाते हैं। कुरान ने फरमाया, वला यक्तब बअदुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अन याकुल अहदुकुम लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमुह। उमर इब्न दीनार फरमाते हैं, मदीना मुनव्वरा में एक भाई था, इसकी एक बहन थी। वो बहन बीमार पड़ी, जो मदीना मुनव्वरा के करीब रहती थी। तो मदीना से ये भाई अपनी बहन बीमार बहन के इयादत और उसकी खिदमत में लंबा वक्त उसके पास गुजार दिए। लाइलाज बीमारी थी, बहन मर गई। मदीने की सरजमीन है, अंदाजा लगाओ, मदीने की सरजमीन। वो भाई कैसा अपनी बहन की बीमारी पर पूरी टाइम उस पर खर्च कर दिया, यहां तक कि उसकी मौत आ गई। दफना दिया। दफनाने के बाद, दफनाते वक्त कोई कीमती दिरहम दीनार की थैली कब्र में छूट गई। जैसे आदमी कब्र में उतारता है, उपले जेब में कुछ हो तो गिर जावे, आदमी को पता नहीं रहता। तो कीमती थैली थी, वो कब्र में चली गई। इस भाई ने लोगों से बाखबर किया, किसी की मदद के जरिए से कब्र खोल करके वो थैली निकाल ली। बरज़ख है, आलम आखिरत की पहली मंजिल कब्र है। इसमें जो हो रहा है वो दिखता नहीं, और कभी अल्लाह आश्कारा कर देते हैं, दिखा देते हैं। थैली निकाल ली, काम पूरा हो गया।
इसलिए कहते हैं कब्रिस्तान में अगर कोई नाशाइस्ता चीज देखे कब्र में, जल्दी बंद कर दे, लोगों के सामने उसका मुजाकरा न करे, उसका फजीता न करे। लेकिन कभी कुदरत उसका फजीता इसलिए करवाता है ताकि दूसरे लोग इबरत हासिल करें। भाई के दिल में आया चलो कब्र खोल ही ली गई है तो मैं अपनी बहन को देख लूं क्या है। भाई ने देखा तो पूरी कब्र अंगारों से पूरी बहन भरी हुई थी। आंख के अंगारे से पूरी बहन ऐसा था कि शोला मार रही है। बारी ताला की तरफ मुतवज्जो हुए, अल्लाह मेरी बहन है। भाई को बहन से मोहब्बत होती है। जिस डाई में भाई पैदा हुआ है उसी डाई में उसी रहम में बहन पैदा हुई, और भाई बहन की मोहब्बत को कोई खत्म नहीं कर सकता। नतीजा ये हुआ अल्लाह से दुआ की, आए अल्लाह मेरी बहन का यह हाल आखिर क्यों हुआ, उसकी मगफिरत फरमा दे। दुआएं हुई। अल्लाह ताला ने अब घर में मालूम किया कि मेरी बहन की आखिर वो कौन सी खसलत थी, जिंदगी के उसके काम क्या थे। इंसानों की जिंदगी मौत के बाद खुलती है। अच्छी जिंदगी है तो सीलों की सूरत, और बुरी जिंदगी है तो अजाब की शक्ल इख्तियार कर लेती है अगर तौबा नहीं हुई। तो किसी ने बताया उसकी जिंदगी में एक बुरी आदत थी जिस पर मैंने ये वाकया जिक्र की। वो आदत ये थी कि जब रात हो जाती थी तो पड़ोस की दीवार के पास खड़ी रहती थी और उस घर में जो कुछ होता था कान लगा करके चुपके सुनती थी, यानी चुगली खाती थी, चुगलखोर थी। ये उसकी जिंदगी थी। आमतौर पर औरतों में आदत होती है, जैसे हम भी कहते हैं कि पेट में बात औरत के रहती नहीं, चुगलखोर थी, यही उसकी आदत थी। दुआए मगफिरत हुई, अल्लाह ताला से माफी शाफी की, सदका खैरात किया, इसाले सवाब किए। तो चुगलखोर इंसान और कीना रखने वाला, अपने मुसलमान भाई के बाबत दिल में दुश्मनी रखने वाला एक खुला दुश्मन होता है। उससे हर एक आदमी को चौकन्ना होता है, और एक मारे आस्तीन होता है। फारसी में मार को सांप कहते हैं और आस्तीन का माना आस्तीन। ये आस्तीन के सपोलिये होते हैं। पूरे वर्ल्ड में मर्दुम शुमारी में जितनी भी कौमें बसती है, यहूदियों के बाद मुसलमानों में मारे आस्तीन सबसे ज्यादा है। कब मौका मिले और इज्जत पर हमला कर दे, कब मौका मिले माल पर हमला कर दे, कब मौका मिले इज्जत पर हमला कर दे। ये मारे आस्तीन की दुनिया में कोई कमी नहीं। अंदर के सांपों से बचना बहुत मुश्किल, खुले हुए दुश्मन से होशियार रहना बहुत आसान। कीना कहा जाता है मारे आस्तीन को, वो भी दिल में दुश्मनी छुपाता है, अंदर में बुग़्ज़, जाहिर में सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम। कीनावर इंसान की मग़फ़िरत नहीं होती। बड़ी रात है, 6 गुनाह से, खुसूसियत से जो मुब्तला है, तौबा करनी चाहिए, फिर इबादत करनी चाहिए। जैसे हौज में, कुएं में, बोर में नापाकी गिर गई तो पहले नापाकी निकाल कर कुएं का पानी निकाला जाता है। अंदर कुतरा पड़ेला जो है और डोल पूरी जो है वो साफ कर रहा है लेकिन कुत्ता निकलता नहीं, फिर पानी भर देता है। तो अकल भी कहती है कुतरा पड़ेला है तो ये थोड़ा साफ होने वाला है। इस तरह दिल दिमाग में दुनिया के कुत्ते पड़े हुए हैं और इनके मौजूदगी के साथ साथ आदमी कितनी ही इबादतों में मसरूफ रहे उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। 6 गुनाह है। एक शिर्क, माँ बाप की नाफरमानी, क़त्अ ताल्लुक़ अल्लाह ताला से। जब अल्लाह ने रहम को पैदा किया, अल्लाह की दाहिनी तरफ खड़ा हो गया। अल्लाह रहमान है और रहम नाता खड़ा हो गए और अल्लाह से कहा मैं तुझे तेरी ज़ात का वास्ता देता हूं
तूने तेरे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ा है, अल्लाह रहमान और रिश्ता रहम। तूने तेरे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ा है, मैं तुझे तेरी इज्जत का वास्ता देता हूं, जो मुझे जोड़े उसको तू जोड़ दे, और जो मुझे काटे उसको तू काट दे। चौथे नंबर में शराम, जीनम और कीनम और बुग़्ज़, इन तमाम महलकात से इंसान को बिल्कुल्लिया तौबा कर लेनी चाहिए, और मंगल का दिन पूरा होकर मगरिब की नमाज से शब बरात शुरू हो जाती है। ये बरात की रात है। इस रात में फीहा युफ़रक़ कुल्लु अम्रिन हकीम, हर हिकमत वाले मामले का फैसला होता है। क्या मतलब? हदीस में है, इंसान के पैदा होने के साथ 4 चीजें लिख दी जाती है। इंसान की जिंदगी, इंसान की मौत, इंसान की सआदत, इंसान की शकावत। मां के पेट में जान पड़ी तब से 4 चीजें लिख दी गई, जिंदगी, मौत, सआदत, शकावत। जब 4 चीजें लिख दी गई तो आज की रात में फैसले का मतलब क्या? फरिश्तों की जमात को आज की रात में साल भर की जिम्मेदारी सुपुर्द की जाती है। मलकुल मौत के हवाले 15 शाबान से 14 शाबान तक जिनकी रूहें कब्ज करनी है, इनकी फहरिस्त दे दी जाती है, और दीगर फरिश्तों को, बारिश के फरिश्तों को बारिश का निजाम, रोजियों के फरिश्तों को रोजियों का निजाम, ये सारे फरिश्तों की ड्यूटी आज की रात तकसीम होती है। इस वजह से ये दो रातें आसमानों पर फरिश्तों की ईद की रात है, एक शब बरात और एक लैलतुल क़द्र। जैसे दुनिया में इंसानों की 2 दिन की ईदें होती है, एक रमजान ईद, एक बकरा ईद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रात की खैर, अनवार और बरकत से हमें माला माल फरमाए, और इस रात की नहुसत से अल्लाह हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। चंद जरूरी ऐलानात हैं। मदरसा दारे अरकम का सालाना इनामी जलसा 4 मार्च शनिचर के दिन रखा गया है, और इशा की नमाज के बाद दारे अरकम की मस्जिद में, और जमात का वक्त 8:30 बजे है। दूसरा ऐलान यह है, मदरसा फैजुल कुरान कुव्वतुल ईमान का जलसा 5-3 इतवार के दिन रखा गया है, सुबह में 8:30 बजे। दोनों जलसों में तमाम साथियों से गुजारिश है पहुंचने की कोशिश करें। इस्माइल भाई उकरडा के इसाले सवाब के, इस्माइल भाई उकरडा की बीवी इंतकाल कर गई है। नमाज के बाद उनके लिए इसाले सवाब की दरखास्त की गई है। मंगल का दिन मगरिब की नमाज से लेकर फजर की नमाज तक रात की इबादत का एहतिमाम हर आदमी अपने अपने हिसाब से, इज्तिमाई कोई अमल साबित नहीं, इनफिरादी अमाल में फर्ज नमाज जमात के साथ मगरिब पढ़ करके फिर तहज्जुद पढ़ने, मगरिब पढ़ करके पहले अव्वाबिन पढ़ने, अव्वाबिन के बाद सोने से पहले 4, 8, 12 जितनी तबीयत चाहे नफल नमाज पढ़ ले, 2-2 रकात करके सलातुत तस्बीह पढ़ ले, 3 पारे कुरान की तिलावत कर ले, 100 मरतबा तीसरा कलमा, 100 मरतबा दुरूद शरीफ, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार, ये जिक्र हो गया, और अल्लाह से दुआ कर ले। इस रात को इबादत में गुजारने का सवाब मिलेगा। अल्लाह अपने फजल से ये मुबारक रात नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।